اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، یعنی علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ایک مبارک ارشاد ہے، اطلب العلم من المہدی الی اللحدی، علم حاصل کرو پیدائش سے لے کر قبر میں جانے تک۔ تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ہم بنیادی عقائد اور معلومات اہل سنت سے متعلق چند کوشچن کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو ہمارے بیٹھے ہوئے اسٹوڈنٹ ہیں اس کے صحیح جواب دے پاتے ہیں یا نہیں۔ تو سب سے پہلے ہمارا یہ سوال ہے کہ آسمانی کتابیں جو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبیوں پر نازل کی وہ کل چھوٹی بڑی ملا کر کتنی کتابیں ہیں؟ 104۔ سبحان اللہ، کتنے ہیں؟ 104۔ سبحان اللہ۔ اچھا، ان میں سے 4 جو بڑی مشہور آسمانی کتابیں ہیں ان کے نام بتائیے۔ عزیر؟ سبحان اللہ۔ عبد الرحمن، کن کن پر نازل ہوئی بتائیے؟ توریت موسیٰ علیہ السلام پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن مجید محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اچھا، صحابی کسے کہتے ہیں آپ بتائیے؟ صحابی اس شخص کو کہتے ہیں جو ایمان کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے یا کچھ لمبے کی زیارت کرے یا کچھ لمبے صحبت پائے ان کی اور ایمان پہ ان کا انتقال ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صحابی اس خوش نصیب شخص کو کہتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان کی حالت میں زیارت کرے یا ایک لمحے کے لیے آپ کی صحبت پالے اور ایمانی پر ان کا خاتمہ ہو، تو ایسے شخص کو صحابی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، ہمارا اور ایک سوال ہے کہ نبی اللہ تبارک تعالیٰ کی جو نوری مخلوق ہے تو نوری مخلوق سے مراد کون سی مخلوق؟ فرشتے۔ سبحان اللہ۔ تو فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ اس کا حقیقی علم وہی جانے جس نے ان کو پیدا کیا، یعنی رب تعالیٰ کو اس کا حقیقی علم ہے کہ فرشتے کتنی تعداد ہے۔ یہ بات حق ہے کہ فرشتے جنات اور انسان سے کئی گنا زیادہ ہے۔ انسانی مخلوق سے زیادہ جنات ہے اور جنات سے بھی زیادہ فرشتے۔ سبحان اللہ۔ تو ہمارا اور ایک سوال ہے کہ خلفائے راشدین کسے کہتے ہیں؟ عبد الرحمن بتائیے۔ خلفائے راشدین 4 بڑے صحابہ کو کہتے ہیں اور ان کے نام سب سے پہلا خلیفہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، تیسرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اور چوتھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ عزیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا ہے؟ حضرت عبداللہ۔ سبحان اللہ۔ آپ کی والدہ کا نام کیا ہے؟ حضرت امینہ۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کی جو دائی تھی جو آپ کو پالے تھے ان کا نام کیا تھا؟ سبحان اللہ۔ زور سے بولیے۔ حلیمہ سعدیہ۔ سبحان اللہ، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، عبد الرحمن آپ بتائیے وضو میں کتنے فرائض ہیں؟ وضو میں 4 فرائض ہیں۔ بتائیے کون کون سے؟ سب سے
पहला चेहरा धोना, आनंद जहाँ से हमारे बाल उठते हैं वहाँ से लेकर कान की लौ से ठुड्डी के नीचे तक 3 मरतबा धोना, इसे चेहरा धोना। जी, 1 मरतबा धोना फ़र्ज है, 3 मरतबा धोना सुन्नत करीमा है। जी, पहला ये फ़र्ज अदा हो गया। दूसरा फर्ज है दोनों हाथ गोलियों समेत धोना, सुभान अल्लाह। और तीसरा फर्ज है चौथाई सर का मसह करना। सुभान अल्लाह, चौथा फर्ज है दोनों पैर टखनों समेत धोना। सुभान अल्लाह। तो ये वज़ू के फ़राइज़ थे, तो इनका धोना वज़ू में क्या है, फ़र्ज़ है, ज़रूरी है। अगर इन आज़ा में से जो जो अभी ज़िक्र किए गए उनमें से अगर कोई हिस्सा बाल बराबर भी अगर वज़ू में सूखा रह गया तो उसका वज़ू नहीं होगा। कुल्ली करना, नाक में पानी चढ़ाना सुन्नत है। जी, वज़ू में कुल्ली करना और नाक में पानी चढ़ाना ये सुन्नत करीमा है। सुभान अल्लाह। अच्छा, अब्दुल रहमान आपसे और एक सवाल है, अगर कोई शख्स जैसे कि हम आम तौर पे जैसा नहाते हैं उस तरीके से अगर कोई नहा कर आया तो उस तरीके से वो नमाज अदा कर सकता है कर सकते हैं, गुस्ल से? कर सकते हैं नमाज। जी, सुभान अल्लाह। क्योंकि जिन आज़ा का धोना वज़ू में फ़र्ज था उन आज़ा पे पानी बह गया। सर का मसा जो करना था वो हिस्सा भी धुल गया, और जो चेहरे की जो तारीफ बयान की गई वो चेहरा भी धुल गया। उमूमन जहाँ से बाल उठना शुरू होते हैं कान की लौ से लेकर ठुड्डी के नीचे तक, तो इस पर भी पानी बह गया, और दोनों हाथ कोनियों समेत तो इस पर भी पानी बह गया, और दोनों पैर टखनों समेत तो इस पर भी पानी बह गया। तो नॉर्मल जैसा हम गुस्ल करते हैं, नॉर्मल गुस्ल, अगर कोई इस तरीके से भी गुस्ल कर अगर नमाज अदा करे तो उसका गुस्ल, उसका वज़ू माना जाएगा और उसकी नमाज भी दुरुस्त हो जाएगी। सुभान अल्लाह। तो ये कई मरतबा ये मसले को मैं बयान किया था अब्दुल रहमान से, ये मसला याद ना रहा, तो इंशाअल्लाह तबारक तआला कोशिश करें कि चीज़ों को याद रखें। तो गुस्ल जनाबत किसे कहते हैं? जनाबत जब बच्चा बालिग हो गया तो उसको जनाबत किसे कहते हैं? नापाकी, नापाकी को जनाबत कहते हैं। गुस्ल जनाबत नापाकी को दूर करने के लिए जो गुस्ल किया जाता है उस गुस्ल को गुस्ल जनाबत कहते हैं। इंशाअल्लाह याद रहेगा, इंशाअल्लाह। गुस्ल जनाबत में कितने फ़राइज़ हैं, कौन बताएगा? जी फराइज़ सबसे पहला कुल्ली करना, और जब हम पानी लेते हैं ना तो पानी पूरा दौरान करना, फिर कुल्ली कर देना, और दूसरा नाक में पानी लगाना, और तीसरा जो है हमारा जितना भी ज़ाहिरी बदन है उस पर पानी बहाना। सुभान अल्लाह। ऐसा पानी बहाना के कोई हिस्सा बाल बराबर भी खुश्क ना रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, ठीक है अब्दुल रहमान, आप ये बताइए कि नमाज में कितने अरकान हैं, कितने फ़राइज़ है? फ़र्ज़ कितने? 7 फ़र्ज़ है। कौन कौन से बता पाएंगे आप? ये बताइए इंशाअल्लाह। सबसे पहला तकबीरत तहरीमा, और दूसरा क़याम, तीसरा क़िराअत, चौथा रुकूअ, पांचवा सुजूद, और छठा क़ादा आखिरा, और सातवां खुरूज बिसुनइही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मुबारक। तो ये नमाज के फ़राइज़ थे। तो नमाज के शराइत कौन बयान करेंगे आप? नमाज के शराइत, नमाज में कितने शराइत हैं? 6। बयान कौन करेंगे? हाथ उठाइए, कौन बयान करेंगे? जी, अब्दुल रहमान, चलिए। सबसे पहला तहारत में 3 चीज़ें आती हैं। सबसे पहला जिस्म का पाक होना, दूसरा लिबास का पाक होना, और जिस जगह हम नमाज पढ़ रहे हैं उस जगह का पाक होना। दूसरा नियत, जिस नमाज की हम नियत कर रहे हैं उस नमाज की दिल में नियत होना।
ये भी शराय में से है। और तीसरा सितरे वगैरह क्या है, कितना पर्दा करना है, नाक के नीचे से लेके घुटनों सोने तक हमें पर्दा करना है, ये भी नमाज में शर्त है। और चौथा वक्त, जिस वक्त पे हम नमाज अदा कर रहे हैं उस वक्त को हम ऐसा नहीं कि हम असर की नमाज ज़ोहर के वक्त में अदा करते, ऐसा नहीं। जिस नमाज अदा कर रहे हैं, नमाज अदा कर रहे हैं, नमाज का वक्त ना हो। सुभान और अल्लाह। पांचवा तकबीरत इस्तक़बाल क़िबला। इस्तक़बाल क़िबला का माना यह है कि क़िबला रुख कर नमाज अदा करें। और छठा तकबीर तहरीमा। तकबीर तहरीमा किसे कहते हैं? तकबीर तहरीमा अल्लाह ऊपर लेकर हाथ उठा के नमाज को शुरू करें। नमाज शुरू करने के लिए जो तकबीर कही जाती है उस तकबीर को तकबीर तहरीमा कहते हैं। तकबीर उला भी कहते हैं। तकबीर उला यानी पहली तकबीर, तकबीर तहरीमा। तकबीर तहरीमा क्यों कहते हैं? तकबीर तहरीमा तकबीर को इसलिए कहते हैं क्योंकि नमाज से पहले हमारे ऊपर कुछ चीज़ें हलाल थी और वो नमाज में आने पर खराब हो गई, जैसा खाना पीना, सलाम करना, ऐसे चंद चीज़ें हैं जो नमाज में हमारे लिए खराब हो जाती है। तो तकबीर बांधने के बाद वो चीज़ें हमारे ऊपर खराब हो गई, इसीलिए इसलिए इस तकबीर को तकबीर तहरीमा कहते हैं। तहरीमा का माना है हराम करना, यानी कि बास चीज़ें जो नमाज के बाहर हम पर हलाल व जायज़ थी, नमाज में दाखिल होने के बाद वो चीज़ें हम पर हराम हो गई। जैसे कि किसी को हम सलाम नहीं कर सकते और कोई अगर सलाम करा तो उसका जवाब देना भी हम पर हराम है, नाजायज़ है। अगर कोई छींका, किसी ने हम्द कही तो हम्द का जवाब देना भी ये हराम है। जैसे खाना पीना, चलना फिरना, कलाम करना, बातचीत करना, तो ये चीज़ें क्या है हमारे लिए नमाज के बाहर ये चीज़ें जायज़ थी, हलाल थी। नमाज में जैसे ही हम तकबीर तहरीमा कहे, नमाज में हमने शुरू हो गई, नमाज हमारी शुरू हो गई, तो इस तकबीर के ज़रिए वो तमाम चीज़ें हमारे पर क्या हो गई, हराम हो गई। सुभान अल्लाह। तो इंशाअल्लाह तबारक ताला ये मुख्तसर सा ये मालूमाती वीडियो था जो हमने ये बच्चों से पूछने की कोशिश की। तो उज़ैर आपसे और एक सवाल है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो किताब नाजिल हुई वो कौन सी किताब नाजिल हुई? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जो छोटे क्वेश्चन है मैं भी वो भी कर लेता हूँ इंशाअल्लाह तबारक ताला। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो मैं सैयद वसीम साहब से ये सवाल करूँगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान, उनका नाम क्या था? हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। नबी करीम मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक किसने रखा? मुहम्मद, ये नाम किसने रखा? आपके दादा जी, आपके दादा जान मुहम्मद अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुहम्मद ये नाम रखा। सुभान अल्लाह। तो आपके दादा जान ने आपका नाम मुहम्मद रखा। सुभान अल्लाह। तो अहमद ये नाम आपका किसने रखा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपकी वालिदा माजिदा हज़रत बीबी आमिना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अहमद रखा। सुभान अल्लाह। तो ये दो मशहूर नाम है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और बकिया जितने भी नाम है वो सिफाती नाम है। तो इंशाअल्लाह तबारक ताला ऐसे ही हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, अच्छी अच्छी मालूमाती वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप इन बच्चों को देखें कि ये बच्चों की कैसी तरबियत हो रही है, बच्चे सीख रहे हैं, इल्म सीख रहे हैं। तो इन बच्चों के लिए आप दुआ करें, हमारे लिए भी दुआ करें कि हम भी ऐसे ही इल्म दीन सीखते रहें और अपने नस्लों को ऐसे ही इल्म दीन सिखाते रहे। तो इंशाअल्लाह तबारक ताला ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो के साथ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तो उस वक्त तक हमको इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।